Hi everybody, my name is Amar Jaju and you're watching Nation Next. Today at I Thank My Doctor, we have renowned psychiatrist Dr. Sudhir Bhave. We are going to talk about the mental health crisis that people are facing right now because of the COVID-19 crisis in our country and because of the second wave. First of all, welcome to our program, Dr. Sudhir Bhave. Thanks a lot, Amar, for having me here. Thank you. Sir, first and foremost, as I said, that we want to talk about the mental health crisis that people are having these days. Many people are going through anxiety issues and depression. First and foremost, as a doctor, what would you say? What kind of people are you, treating on a regular basis? What kind of problems have they developed because of this crisis? See, the most common problem I think that people are having these days are related either to anxiety issues or depression. As you know, this pandemic has got many facets to it, be it health or be it financial difficulties, be it lockdown, and so many multiple reasons because of which people are getting quite emotionally upset. And talking as a psychiatrist, I think many of them fall into the rubric of what we diagnose as either anxiety disorders or depressive illnesses or depression. These are the most common ones. ओके बट सर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको कभी कोई एंजाइटी इश्यूज नहीं थे, कभी उनको कोई डिप्रेशन के इश्यूज नहीं थे या एक जनरल फीलिंग ऑफ सैडनेस उनको बहुत ज्यादा कभी नहीं था, बट जब से ये पैंडेमिक शुरू हुआ है तब से उनको बहुत ये सब इश्यूज आने लग गए. व्हाट वुड यू से आर द ट्रिगर्स फॉर इट? पिछले एक साल में ऐसा क्या क्या हुआ है और क्यों ये ट्रिगर हुआ है अचानक से लोगों में? I think you rightly said कि बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसे प्रॉब्लम पहले नहीं थे. See what happens, Amar, is that everybody has got a breaking point. यानी जो लोग पहले से काफी हेल्दी चले आ रहे हैं, तो हर एक का अपना अपना एक वीकनेस होता है और एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है कि स्ट्रेस अगर उससे ज्यादा हो गई, so then the person starts showing signs of psychological difficulties like losing your sleep, not being able to concentrate, not being able to carry out your daily chores properly वगैरह. अब जहां तक ट्रिगर्स की बात है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग स्ट्रेसेस हैं जो इस लॉकडाउन में हम लोग देखते हैं जिनको ट्रिगर कह सकते हैं. लाइक एंजाइटी अबाउट वंस ओन हेल्थ, कि कहीं मुझे तो नहीं हो जाएगा, विच इज वेरी अंडरस्टैंडेबल. मुझे हो गया तो मेरे घर में कोरोना आ सकता है क्या, मेरे घर में मेरे बुजुर्ग पेरेंट्स हैं या मेरे घर में बच्चे हैं, अगर मुझे हो गया तो इनका क्या होगा, इन सबको हो सकता है. देन वी आर सीइंग डेथ हैपनिंग नॉट टू फार अवे फ्रॉम अस. लगभग हर एक के साथ ऐसा हो रहा है कि या तो रिश्ते में कोई या पहचान का कोई उनके डेथ्स हो गए हैं with the large number of deaths that are happening around us. So that is one of the major triggers. Then financial difficulties that people are facing is another very important causative factor. Because मेरे ख्याल से जो लोग गवर्नमेंट सर्विस में हैं उनको अगर छोड़ा जाए तो बाकी लगभग हर व्यक्ति अपनी अपनी आर्थिक प्रॉब्लम में आजकल है. लोगों को ले किया जा रहा है, सैलरीज कट हो रहे हैं, जो बेचारे छोटे मोटे ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, दुकान बंद करनी पड़ रही है लॉकडाउन में. लोगों का बाहर निकलना कम हो गया है, तो सेल्स लोगों के काफी कम हो गए हैं, तो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज लोगों को काफी आ रही हैं. तो ये सारे ऐसे अलग अलग ट्रिगर्स हैं. लॉकडाउन इटसेल्फ ब्रिंग्स सेवरल ट्रिगर्स विद इट. लाइक लॉकडाउन का बोर्डम, घर बैठे हैं, पहले घर बैठने की आदत नहीं थी, या लोगों के घरों में मैं देखता हूँ कॉन्फ्लिक्ट्स काफी बढ़ गए हैं. यानी जहाँ हमारे पास पेशेंट्स आ सकते हैं तो बहुत सारे पेशेंट ये कहते हुए आ रहे हैं कि डॉक्टर साहब 24 घंटा घर में रहने की आदत नहीं थी, पत्नी को मेरी आदत नहीं थी 24 घंटा, और वाइस वर्सा. तो हम लोगों में आजकल विवाद और कॉन्फ्लिक्ट काफी बढ़ गए हैं. Children are having problems with the parents and vice versa. So I think these are different kinds of triggers that we can see around us. But sir, you have been practicing for a couple of decades, and you have very rich experience in the field. Would you say कि the inflow of patients because of the pandemic has suddenly increased to you? See, I think that's a rather complex thing, क्योंकि ऐसा है कि community surveys जो हुए हैं, they show that the psychological morbidity has increased. यानी psychiatric problems community में ज्यादा हो गए. अब ये ज्यादा होने के भी काफी रीजंस हैं. एक तो ये जैसे कि पेशेंट्स हमारे पास पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो उनको टाइम पे मेडिकल अटेंशन नहीं मिल पा रहा है.
बीमारियां इस कारण से बढ़ गई हैं, या दवाई की दुकानों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं लोग, प्रिस्क्रिप्शंस उनको मिल नहीं पा रहे, बिना प्रिस्क्रिप्शन दुकानदार मेडिसिन नहीं दे रहा है। तो ये कुछ कारण है कि मानसिक बीमारी बढ़ रही है। पैंडेमिक इटसेल्फ ब्रिंग्स ऑन ए लॉट ऑफ स्ट्रेस, जिससे कि ऑलरेडी जो आपने कुछ देर पहले जिक्र किया था कि कुछ लोगों को ऑलरेडी मानसिक समस्याएं चल रही थी, तो इनकी समस्याएं बढ़ गई हैं बिकॉज ऑफ ऑल द स्ट्रेस। तो ये तो बढ़ाने वाले फैक्टर्स हैं, लेकिन दूसरा फैक्टर ये भी है कि लोग हम तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिवली इसको असेस करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम जानते हैं कि समस्याएं बढ़ रही हैं, फोन कॉल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। आई एम गेटिंग 2 फोन कॉल्स पर डे फ्रॉम पेशेंट्स, डॉक्टर साहब ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, मेरे घर में इसको ऐसा हो, साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम आ रहा है, वैसा आ रहा है, बट देन दे आर नॉट एबल टू टीच अस। तो हालांकि हमारे हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में साइकेट्रिक पेशेंट्स आने की संख्या कम हो गई है, बट नो फॉर श्योर कि कम्युनिटी में इनका नंबर बढ़ गया है। एंड आई थिंक देयर इज प्रॉब्लम देयर, क्योंकि डिस्पैरिटी हो गई है, प्रॉब्लम बढ़ गया है लेकिन बेचारे हम तक पहुंच नहीं पा रहे। सो दैट्स अ काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। सर, जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे ट्रिगर्स है, लोग कहीं जा नहीं पा रहे हैं, घर पे बैठने की आदत नहीं है, फाइनेंशियल ट्रिगर्स भी है, एक हेल्थ एंजाइटी भी है खुद को लेके कि मुझे कुछ हो ना जाए, मेरे घर वालों को कुछ हो ना जाए। इन सब चीजों के बीच में एक ये भी है कि people since they are at confined at their homes, people are also consuming news at a very higher speed, and a lot of disturbing news are coming in like day by day. कभी हम लोग अभी खुद देख रहे हैं, जैसे पूरे देश भर की हालत है कि नागपुर की स्पेसिफिकली देखा तो दवाइयों की कमी है, बेड्स की कमी है, और सब ये सब चीजें ही चलती रहती है। तो हाउ डज अ पर्सन डील विद दैट व्हेन देयर इज सो मच इनफ्लो ऑफ नेगेटिव इंफॉर्मेशन कमिंग इन फ्रॉम ऑल एंड्स? हाउ डज अ पर्सन डील विद दैट? आई कंप्लीटली एग्री विथ यू कि नेगेटिव इंफॉर्मेशन का फ्लो बहुत ज्यादा हो गया है। यानी एक तो आजकल ये जो प्राइवेट टीवी चैनल्स हैं, ये जिस ड्रामेटिक ढंग से न्यूज पेश कर रहे हैं, खासकर पैंडेमिक के शुरुआत में तो बहुत ही ड्रामेटिक था कि कहाँ कितनों की मौत हुई, कहाँ कितने नंबर बढ़ गए, विथ ऑल द ड्रामा, विजुअल, ऑडियो ड्रामा, वो सब चल रहा था। तो न्यूज चैनल्स से बड़ा प्रॉब्लम था। एंड सेकेंडली सोशल मीडिया हैज प्लेड अ बिग विलन। बहुत सारी गलत बातें हैं, बहुत सारा आइदर मिस इन्फॉर्मेशन और कंप्लीटली मिसलीडिंग थिंग्स, ये काफी ज्यादा अपने को दिखता है। इनफैक्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, उनके प्रेसिडेंट ने रिसेंटली कहा है कि अपार्ट फ्रॉम द पैंडेमिक देयर इज एन इन्फोडेमिक। इट्स अ वेरी गुड टर्म कि इन्फोडेमिक हो गया, देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ information which is completely wrong. So these things definitely are having a very bad influence on people. If you ask me about miss how to handle that, जैसे एक given person इस चीज को कैसे हैंडल करे, मेरे ख्याल से यहाँ पे एक सिंपल गाइडलाइन मैं लोगों को देता हूँ कि डेली केवल एक ही बार न्यूज से वाकिफ हो, यानी दिन भर बार बार न्यूज देखने बिल्कुल ना करें। और वो भी मैं लोगों को कहता हूँ कि या तो केवल न्यूज़पेपर से, क्योंकि न्यूज़पेपर जनरली वुड नॉट गिव दैट काइंड ऑफ ड्रामा एंड ऑल एक्सैजरेटेड न्यूज एज टीवी चैनल्स डू। और मैं कहता हूँ या तो दूरदर्शन देखो। दूरदर्शन बहुत विदाउट एनी ड्रामेटिक्स, दूरदर्शन जो ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स है वो देता है। सो डू ओनली वंस इन अ डे। एंड सेकेंडली व्हाट्सएप पे आप जो भी देखते हैं, जो भी पढ़ते हैं, जस्ट इग्नोर इट। उसमें से कुछ बातें सही हैं, हम डॉक्टर कहते हैं कि व्हाट्सएप पे जितना मेडिकल इंफॉर्मेशन आजकल आ रहा है अबाउट मेडिकेशन, अबाउट द इलनेस, उसमें से 80% गलत है, केवल 20% सही है। लेकिन एक ले पर्सन को ये जानना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, unless he or she talks to a doctor. So completely ignore what you are seeing on WhatsApp. Take recourse to newspapers. उसमें कुछ डाउट होगा तो then maybe you can get connected to some doctor to verify the facts. Sir, moving on from WhatsApp to internet, there is just one more problem that because everything is so accessible. एक हमारी जो जनरेशन है वो हर चीज को गूगल पे सर्च कर लेती है, कोई भी बीमारी को या कोई भी प्रॉब्लम को। हाउ डू यू थिंक, आई मीन हाउ मच अनहेल्दी इज दैट? That's very very unhealthy. I think this is a very important question, क्योंकि इसको कई बार हम लोग गूगल डॉक्टर भी कहते हैं। पेशेंट अपने डॉक्टर को सवाल न पूछते हुए गूगल डॉक्टर पे जाता है और गूगल डॉक्टर से सवाल पूछता है। Now that's a very big problem, क्योंकि as you know एक बड़ा कॉमन इश्यू ये है कि जैसे कफ, पेशेंट ने सादा कफ टाइप किया, हो सकता है उसको छोटा मोटा कोई इन्फेक्शन हो, लेकिन आज की तारीख में अगर वो कफ टाइप करता है तो उसमें बहुत ऊपर
कोविड के सिम्टम्स आ जाएंगे कि कोविड में कफ हो सकता है, ये वो, या कभी लंग का कैंसर आ जाएगा उसमें, और कि जितने ज्यादा हिट्स उस पे रहते हैं उतना ही वो और ऊपर आ जाता है. सो द पॉसिबिलिटी ऑफ ए पर्सन सीइंग अ सेंसेशनल आउटपुट ऑफ द गूगल इज मोर देन सीइंग समथिंग व्हिच इज बिनाइन. तो इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. इनफैक्ट और आपने पुराना टर्म सुना होगा, इट्स अ वेल नोन टर्म हाइपोकॉन्ड्रियाक या हाइपोकॉन्ड्रियासिस. मतलब होता है कि पीपल हु आर ओवर कंसर्न्ड विद देयर ओन हेल्थ, who believe that they have some illness based on their own understanding of the illness and it's all imaginary. तो आज की तारीख में हम लोग उसको साइबर कॉन्ड्रिया कहते हैं. सो हाइपोकॉन्ड्रिया तो अपनी जगह है, लेकिन हाँ, इट्स साइबर कॉन्ड्रिया. So people are going on Google, their fears are getting exaggerated by virtue of whatever they see there. So it is a big problem. Many times people tend to believe this Google doctor more than the actual live doctor who is sitting in front of them. Patients हमारे पास printouts लेके आते हैं कि लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ तो ऐसा लिखा हुआ है. मैंने कहा इसमें आपकी उम्र 56 साल है, आपको डायबिटीज है, आपकी हेल्थ फलाफला है, आपका वेट कितना है, उसके बारे में वहां लिखा नहीं है. उसमें बहुत जनरल सी बात लिखी हुई है. So there are issues with problems. I think people should avoid doing that and rather see a proper doctor if they have some kind of problem rather than googling things on their own. Okay, sir. Sir, the caveat I would put there that the site that you see is very very important. अगर क्रेडिबल साइट्स हैं, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की साइट पे आप जाते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन देखते हैं. CDC अमेरिका, लाइक सेंटर फॉर डिजीजेस कंट्रोल USA, उस पर जाते हैं. मेयो क्लिनिक की साइट पे जाते हैं, जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की साइट पे जाते हैं. तो वहां जो जानकारी मिलेगी वो सही होगी, पर वो भी हर जानकारी खुद को अप्लाई करना गलत होगा अनलेस डिस्कस दिस विद योर डॉक्टर. Sir, this is about healthy people who are staying at their homes going through something that they feel कि उनको कुछ हो जाएगा या कोई problem हो जाएगी. Specifically in a scenario like this where the possibilities that has risen because of the crisis, COVID-19 crisis that has arisen. But कुछ हमारे पास में बहुत सारे लोग हम बात करते हैं जब लोगों से, तो एक आसपास ही अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे फला आदमी को कोविड हुआ था, बट वो कोविड से नहीं गया, वो इसीलिए मर गया क्योंकि उसको बहुत डर लग गया था या वो डील नहीं कर पा रहा था. एंड आई हैव कम अक्रॉस पेशेंट्स लाइक दैट जिनको जब तक वो पॉजिटिव टेस्ट नहीं हुए उनको तब तक कुछ नहीं लगा, बट द मोमेंट दे टेस्टेड पॉजिटिव इट हैड अ वेरी ह्यूज इम्पैक्ट ऑन देयर माइंड. सो हाउ डू COVID-19 पेशेंट्स डील विद दिस हेल्थ एंजाइटी दैट दे हैव, या ये कि जैसे वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन की एक पेशेंट को ये सोचने की बजाय कि मैं ठीक कैसे होऊंगा, ये सोचना पड़ रहा है कि मुझे बेड कैसे मिलेगा, मुझे ऑक्सीजन कैसे मिलेगा. तो ये पेशेंट इस एंजाइटी से बाहर कैसे निकले, क्या सोचे वो पेशेंट? I completely agree with you. यानी ये एक नई एंजाइटी आजकल जुड़ गई है कि बेड ही नहीं मिलेगा. अगर मैं सीरियस हो गया और मुझे बेड नहीं मिला तो क्या हुआ? That's very important factor. And I think first point that you said is very pertinent कि अगर स्ट्रेस रहा तो actually people tend to get physically more ill. Stress lowers the immunity, and more the stress, lesser the immunity, and more is the possibility that your illness could turn severe. क्योंकि मेरे डॉक्टर फिजिशियन कलीग मुझे अक्सर बताते हैं कि जो कोविड के पेशेंट्स बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, दे टेंड टू डेवलप मोर सीवियर इलनेसेस, एंड द नंबर ऑफ पीपल हु डाई बिकॉज ऑफ कोविड are the kind of people who are under heavy stress and taking things very negatively. So I think that's very important. अब क्या है कि ये जो आपका एक सवाल था ना कि बेड नहीं मिल रहे हैं, हम क्या करें? No, that's a very understandable anxiety. I would not say that anxiety is abnormal, but that's completely understandable. क्योंकि वाकई आज की तारीख में अगर सीरियस हो गए तो नागपुर में बेड मिलना काफी मुश्किल है. मेरे ख्याल से सीरियस होने से खुद को बचाना is something very like for example I test COVID positive, तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ जिससे मुझे हॉस्पिटल में लैंड ना होना पड़े. यानी एक तो यह है कि कोविड पॉजिटिव होते ही साथ में डॉक्टर को कंसल्ट कर लूं. डॉक्टर मुझे जो डाइट बताते हैं, जो मेडिसिन बताते हैं, उसको मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करूं. मैं भले ही एक कमरे में क्वारंटाइन रहूं, लेकिन मैं ये हर कोशिश करूं कि मेरा दिल बहला रहे, मेरा मूड जहां तक हो सके ठीक रहे, मैं अपने आप को एंटरटेन करता रहूं. Certain things definitely help, like meditation helps significantly. Meditation, pranayam, ये एक कमरे में बंद रह के भी किया जा सकता है. That helps. You can continue to indulge in a hobby that has been your hobby since earlier times.
एंड रोज का आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा समय काफी मिल जाता है जब क्वारंटाइन होते हैं, उसमें बिता सकते हैं. थिंकिंग हैज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर इमोशनल वेलबीइंग. थॉट्स जितने रैशनल रहेंगे, जितने पॉजिटिव रहेंगे, जितने ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, उतना इलनेस सीवियर होने से बचती है. नाउ इलनेस को सीवियर करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एंड आई वुड नॉट से केवल पॉजिटिव थिंकिंग आपको बचा लेगा, बट ये कुछ बातें हैं जो अपने हाथ में है. सो इफ follow these kind of things, if you try to be rather happy more often than not, if we try to keep ourselves engaged in something productive, I think that's the way to that's help something save that can you. help a person when he tests positive. Sir, one more thing I want to ask you. I have spoken to a few of our viewers, and apart from my personal experience as well, that कई बार ऐसा होता है कि the entire scenario is very scary. आप अगर आपके कोई रिलेटिव हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, आमतौर पे किसी और चीज की वजह से, आप जा सकते हैं, फल फ्रूट लेके जा सकते हैं, उनके पास बैठ सकते हैं, पर जब आदमी कोविड की वजह से एडमिट होता है तो उसके पास कोई जा नहीं सकता. एंड दैट आई थिंक प्लेज अ वेरी negative role on a certain kind of people, because you see doctors and staffers with PPE kits, and there's nobody to take care of you. So interestingly, one of our viewers told me that when his father was admitted into the hospital, his father told him he was a very healthy guy before he went in. When he told his father told him that अगर तुम मुझे यहाँ से लेके नहीं गए तो मैं यहीं दम तोड़ दूंगा. And he was very scared. So I mean, what would you like to say to people जो अगर हॉस्पिटलाइज हो गए खुदा ना खास्ता, जो बहुत घबरा जाते हैं, बिकॉज उनका जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अलग है. मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि अल्टीमेटली इज व्हाट लाइज इनसाइड योर हेड. योर ओन एटीट्यूड, द वे यू थिंक, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टू जस्ट गिव यू वन एग्जांपल, आई टेस्टेड कोविड पॉजिटिव some months back, पहली वेव में, and I was required to be admitted. मैं भी एडमिट हुआ था. तो उस समय मुझे नेगेटिविटी का एक्सपीरियंस नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने जो कुछ पहले बातें बताई उनको मैंने खुद फॉलो किया. मैं बढ़िया मेरी 3-4 फेवरेट किताबें टू रीड वाली जो लिस्ट में होती हैं वो साथ में ले गया. मैं म्यूजिक सुनने का अपना ईयरफोन्स और सेल फोन साथ में ले गया था. ठीक है. Then I was doing my regular meditation and pranayam while being admitted in the hospital. And thinking का कैसे important role है. जब भी कोविड की सीरियसनेस के थॉट्स आते थे, मैं खुद को रिमाइंड करता था कि possibility of your COVID turning serious or your dying is only 2%. That's a scientific fact. यानी 98% चांस है कि you will sail through it. अब 90% बहुत बड़ा नंबर है. तो ये थॉट कि अरे यार ठीक है, वो तो केवल 2% होता है, 98% नहीं होता है. मैं खुद को एंजॉय करता हूँ, मैं बेड में पड़ा हूँ, मैं अपने गाने सुनता रहूंगा, किताब पढ़ता रहूंगा, बहुत फ्री टाइम मिल गया है, कुछ लिखना है लिख लूंगा. So I think these are the kind of things that really help. So ultimately, what you think, what kind of attitude you have, that is supreme. यानी आपके माहौल में क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं. एक ह्यूमन बीइंग्स की एक बहुत वीकनेस होती है जो शायद अपने पेरेंट्स से आती है अपने में बचपन में, कि हम लोग वातावरण को ब्लेम करते हैं, लोगों को ब्लेम करते हैं. यार ये सामने ये दिख रहा है मुझे, ये ऐसा बिहेव कर रहा है, वो वैसा बिहेव कर रहा है, बगल में पेशेंट मर गया. बट वी फेल टू रियलाइज कि इट इज हाउ यू लुक एट इट. एक बड़ा अच्छा सेंटेंस मैंने काफी पहले पढ़ा था कि इवेंट्स डोंट मैटर, events don't matter, it is your perception of the event that matters. So ultimately it is your perception. आप उसको किस ढंग से देख रहे हो, आप उसके बारे में क्या सोच रहे हो, this is the ultimate factor. Sir, one more thing, ये जो एंजाइटी हम लोग बात कर रहे हैं, एंजाइटी या डिप्रेशन जो है, जिन लोगों को पहले ये सब चीजें नहीं एक्सपीरियंस की, जिन लोग अभी कर रहे हैं, would you say that this is something which is very temporary in terms of COVID-19 pandemic, and it will resolve on its own when the pandemic, I wouldn't say go away because it's there for a long time, I feel, but थोड़ा जब चीजें थोड़ी कंट्रोल में आ जाए तो ये एंजाइटी हो सकता है अच्छी तरीके से मतलब चली जाए या उसका कुछ रिजॉल्व हो जाए.
क्या होता है, ये बहुत ही इंडिविजुअल मैटर है। कोई भी इंडिविजुअल कितना एंजाइटी प्रोन है, दैट इज अ वेरी डिसाइसिव फैक्टर। एंड व्हेन आई से एंजाइटी प्रोन, बेसिकली जिसके थॉट्स एंजाइटी को जनरेट कर रहे हैं, देयर आर सम पीपल हु आर वेरी एंजाइटी प्रोन, यानी उनको छोटा मोटा कारण भी काफी हो जाता है एंग्शियस होने के लिए। तो ऐसे लोगों में कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो कोविड के एंजाइटी में से निकलेंगे तो आगे और पूरी लाइफ मुंह फैलाए खड़ी है कि कोई ना कोई एंजाइटीज आती रहेंगी। बट जो थोड़े रिलेटिवली मेंटली हेल्दी लोग हैं, वो कोविड के दौरान जो सिग्निफिकेंट स्ट्रेसेस हैं उनका सामना करते हुए जो एंग्शियस हुए हैं, वो इसमें से बाहर आ जाएंगे। काफी मेंटली हेल्दी हैं जो कोविड खुद को होने के बावजूद, घर में कईयों को होने के बावजूद, सीरियस इलनेस होने के बावजूद, कई लोग मैंने देखे हैं who maintain a very calm temperament, जो कि in spite of all the difficulties they can smile. These are the kind of people who come out fairly easily out of that, and they are generally not affected by major stresses. So it ultimately depends on your own personality, the way you look at things. Sir, would you say it has also to do with the kind of lifestyle that you lead? I have come across people who have, who are very anxious, but these are also the people who have different kind of habits. Maybe they drink more, maybe they smoke more, and maybe they don't exercise. Do you think that not having a very healthy lifestyle in your life would cause that anxiety even more? I completely agree with you. इसमें मेरा एक फॉर्मूला है गोल्डन 5, मैं इसको गोल्डन 5 कहता हूँ कि यानी आपके लाइफस्टाइल में 5 चीजें अगर आप लाते हैं तो देन चांसेस आर दैट यू आर सेफ। पहला है गुड स्लीप। गुड स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज के जमाने में नींद बहुत ही, स्लीप हैज बिकम कैजुअलिटी। नींद लोगों की बहुत कम हो गई है फॉर वेरियस रीजंस। सेल फोन है, टेलीविजन है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एंड इट हैज बीन शोन थ्रू रिसर्च कि patients of COVID who had been sleeping well, they tend to face their illnesses in a more healthy way. अगर आपकी नींद कम हो रही है तो आपको कोविड होने के चांसेस भी ज्यादा है। सो नींद से कभी कॉम्प्रोमाइज ना करें। सेकंड, मॉर्निंग एक्सरसाइज। अगर एक डेली लाइफस्टाइल में आप ये हैबिट डाल देते हैं कि डेली मॉर्निंग में एक्सरसाइज करेंगे, तो उससे न केवल फिजिकली हेल्दी रहते हैं, वी ऑल नो द मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, बट मेंटली भी हेल्दी रहते हैं। यू आर कामर, यू हैव अ बेटर सेंस ऑफ वेल बीइंग। थर्ड, मेडिटेशन, जो मैंने कहा, अगर आप एक डेली आधा घंटा मेडिटेट कर लेते हैं, सो दैट इज समथिंग व्हिच हैज गॉट बिग साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स। फोर्थ, स्टेइंग अवे फ्रॉम एडिक्टिव सब्सटेंसेस। अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग है, टोबैको है, फिर आजकल बहुत सारी चीजें हैं, वीड है और न जाने क्या क्या। सो स्टेइंग अवे फ्रॉम एडिक्शंस। एंड फिफ्थली, a healthy diet. कि आजकल हेल्दी डाइट भी उतना कॉमन नहीं रहा जितना पहले था। लाइक तो बहुत कॉमनली चीजें बाहर से मंगाना, थिंग्स व्हिच आर नॉट रियली न्यूट्रिशियस, बट जिसको जंक फूड हम लोग कहेंगे, वेरी कैलोरी रिच फूड containing nutrients which are not really very healthy. So I think these 5 things are very important. So if a person does that, I mean, it will help the person in maintaining a very certainly, yeah, certain good mental level. Sir, one more thing, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा exercises, we hear a lot from these from people, psychiatrists such as you, that exercises are very important. Now थोड़े दिन पहले एक स्टडी आई है लैंसेट जर्नल में, द लैंसेट में, that some of the researchers, they have said that the COVID may be airborne, and हो सकता है उसकी वजह से आपको पूरे प्रोटोकॉल चेंज करें। And now this has triggered another level of anxiety among people, because अब लोगों को लग गया कि घर पे बैठेंगे तो भी मास्क पहनना पड़ेगा, एक्सरसाइज करने जाए, बाहर भी जाए तो कैसे जाए। तो हाउ डज अ पर्सन डील विद दिस कि एक्सरसाइजेस करे, अगर वो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे तो फिर वो अपने आप को शांत करने के लिए क्या करे? एक तो मेरा ये कहना है कि एक्सरसाइज हमेशा ही पॉसिबल होती है। एक्सरसाइज डज नॉट नेसेसरली मीन दैट यू हैव टू गो आउट ऑफ योर हाउस टू वॉक और साइकिल। अपने घर में डेफिनेटली एक्सरसाइज हो सकती है। लाइक एरोबिक्स की भी अगर हम लोग बात करते हैं तो आई थिंक आपके घर में अगर कुछ इक्विपमेंट है, स्टेशनरी साइकिल है या खुद की ट्रेडमिल है, तो कोई चिंता ही नहीं है, फिर तो आप कर ही सकते हैं। बट देन देयर आर थिंग्स लाइक डांसिंग। अब डांसिंग इज अ गुड एरोबिक एक्सरसाइज। स्किपिंग, रोप स्किपिंग इज अ गुड एरोबिक एक्सरसाइज। तो कुछ एक्सरसाइजेज जो डेफिनेटली घर में पॉसिबल है। घर में अगर आप एक 20
से 30 मिनट चल भी लेते हैं ना, मैं करता हूँ कई बार, जैसे मॉर्निंग में जब मुझे मेल चेक करना होता है या व्हाट्सएप पे कोई मैसेज चेक करना होता है, मैं चलते चलते करता हूँ, तो कम से कम 20 मिनट मेरा वॉकिंग हो जाता है, which is definitely helpफुल. So you can definitely stay indoors and at the same time exercise. हाँ, यह है कि आपको खुली हवा का एडवांटेज नहीं मिलेगा, हो सकता है अगर आपके घर में लॉन नहीं है, टेरेस नहीं है, बट देन इवन फ्लैट के अंदर एक्सरसाइज करना डेफिनेटली पॉसिबल है. Sir, when a person has some sort of mental issue, the ideal thing that he or she should be doing is going towards a psychiatrist and consulting them. बट अनफॉर्चुनेटली जैसे आपने कहा व्हाट्सएप पे जो हम लोग पढ़ते हैं या लोगों से हम लोग जो सुनते हैं, कई बार एक सजेशन आता है कि नहीं नहीं अरे दवाई नहीं लेना, वो दवाई देंगे तो बहुत मतलब इट इज हैबिट फॉर्मिंग, फिर दवाई बिल्कुल अपने दिमाग हमारे एज अ सोसाइटी एज अ होल हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि आपको इससे निकलना है, आपको उसके लिए दवाई का सहारा नहीं लेना है. तो मतलब हाउ वुड यू रिएक्ट टू कि जो लोग पेशेंट जो है जिनको जरूरत है एक किसी से बात करने की या एक मेडिकल ओपिनियन की या मेडिकल ट्रीटमेंट की, वो इससे भी हिचकिचाते हैं या उनको लोग भी थोड़ा डाइग्रेस करते हैं इस सब चीजों से. एक मुझे टर्म याद आती है साइकोलॉजी में, देयर इज अ टर्म कॉल्ड नेगेटिविटी बायस. नेगेटिविटी बायस का मतलब ये होता है कि ह्यूमन माइंड जनरली टेंड्स टू फोकस मोर ऑन द नेगेटिव थिंग्स. जैसे मान लो साइकेट्री में जो मेडिसिन इस्तेमाल किए जाते हैं उनके अनगिनत फायदे हैं, यानी दे कैन बी लाइफ सेविंग वेरी ऑफन, दे हैव सेव्ड फैमिलीज, दे हैव सेव्ड पीपल. बट अगर कभी कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो बेनिफिट्स को इग्नोर करके साइड इफेक्ट पर ज्यादा फोकस किया जाता है. तो मेरे ख्याल से मेरी एक ले पर्सन को यही राय रहेगी कि डोंट गो बाय व्हाट द पॉपुलर नोशंस आर, जो कि कई बार मिसकंसेप्शंस होते हैं, बट इट्स ऑलवेज गुड टू कंसल्ट अ डॉक्टर. If you are facing any difficulty which you think that you are not able to handle on your own, consult a doctor. अगर आपको मेडिसिन के बारे में डर है तो वो भी डिस्कस कर लें. मेरे पास कई क्लाइंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे मेडिसिन नहीं चाहिए, तो मैं उनको कहता हूँ कि ठीक है, इट्स योर चॉइस. मैंने कहा मैं मेडिसिन आप जबरदस्ती आप पे लादना नहीं चाहूंगा. दीज आर द ऑप्शंस. यू कैन आइदर अंडरगो काउंसलिंग और यू कैन टेक मेडिकेशन और यू कैन टेक बोथ. अब कई कंडीशंस में मेडिसिन आर ए मस्ट. लाइक ऐसी कंडीशन जिनको हम साइकोटिक कंडीशंस कहते हैं, लाइक स्किज़ोफ्रेनिया या मेनिया, वहां बिना मेडिसिन के चलेगा ही नहीं. बट देन देयर आर बॉर्डरलाइन ग्रे एरियाज की जहां मेडिकेशन नहीं लिया तो भी चल जाता है. सो आई थिंक द पेशेंट डिस्कस विद द डॉक्टर हिज और हर ओन ऑप्शंस. सो मोस्ट डॉक्टर्स वुड नॉट really pressurize the patient to take only medication. Sir, we spoke about anxiety and people, hypochondriacs के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. People who are very I would say very cautious in what they do. वो कहीं पे भी जाएंगे तो they are very careful about things, they are very anxious about things, very fearful about things. This is one set of people. Now we have also come across a set of people who seem to be living in a very disillusioned state, and they are like अरे नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, ये सब ऐसे ये फालतू है. Do you think even that is something that is something which is a mental issue as well, people not coming to terms with reality? No, definitely. We see these people quite commonly, यानी people who are rather too confident, very cocksure कि अरे मुझे कुछ नहीं होगा, ये सब बेकार की बातें हैं, I am fairly healthy. I think that attitude is just not right, simply because it can kill you. So I think having a more rational approach, a more reasonable approach, moderate approach कि सुन ली सबकी, साइंस क्या कह रहा है वो देख लिया, and then maybe exercising your choices. I think it's very very important to believe in science. आजकल अब जैसे कोरोना के दिनों में हम लोग देख रहे हैं कि इवन वर्ल्ड अथॉरिटीज का स्टैंड बदलता जा रहा है. WHO पहले कुछ और कह रहा था, बाद में कुछ और कह रहा है. बड़े बड़े सेंटर्स का पहले कुछ कहना था, अभी बाद में कहना अलग है. तो इस रीजन से कई लोगों का साइंस में से विश्वास कम हो जाता है. बट आई थिंक दैट इज अ ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ साइंस कि continuous evolution depending on observation, depending on research, not being dogmatic about what is once known. So I think it's very important that everyone have a faith in science. जो भी evolve हो रहा है, जो भी latest है, उसमें विश्वास करना. I think that's very important. I think being anti-science या just believing in yourself, जिसको naysayers कहते हैं ना कि अरे सब फालतू, अरे वैक्सीन से कुछ नहीं होने वाला, अरे कोरोना ही नहीं. So these naysayers, they are the ones who are likely to kill themselves.
सर वन लास्ट क्वेश्चन टू यू, जैसे कि हमने कहा कि बहुत सारे इश्यूज है, मेडिकल इश्यूज हो सकते हैं, एंजाइटी इश्यूज हो सकते हैं, सोशल लाइफ नहीं है, काम नहीं है, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज है, बट यू नो बहुत you know till the time it stays on to just mental issues and not goes forward, it is all fine, people can deal with it, but we have come across examples, हमने लॉकडाउन में भी देखा, जब पिछले दिनों भी फर्स्ट वेव के बाद भी कुछ दिनों के लिए जब बहुत इवेंट इंडस्ट्री पर्टिकुलरली बंद रही, काफी सारी इंडस्ट्रीज बंद रही, we have come across people who have crossed the barrier and they have gotten to maybe tried to kill themselves or kill themselves, and that is very disturbing as well. So जो बहुत मुश्किल है एक पॉजिटिव आउटलुक रखना बहुत सारे लोगों के, स्पेसिफिकली जो हो सकता है थोड़े उतने स्ट्रांग नहीं है मेंटली, तो जैसे कि आपने 5 चीजों के बारे में बताया, कुछ चीजों से आपको दूर रहना है, आपको एडिक्शन से दूर रहना है, आपको एक्सरसाइज करना है, आपको पॉजिटिव, हाउ वुड यू से, आई मीन एक पॉजिटिव आउटलुक कैसे रखे एक आदमी आगे की सिचुएशन, बिकॉज द सिचुएशन इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, वी डोंट नो हाउ वी आर गोइंग टू गो अहेड, क्या आने वाला है, क्या होने वाला है, तो एक पॉजिटिव आउटलुक कोई भी इंसान कैसे रखे? मैं ऐसा कहूंगा कि सी देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट गवर्न योर हेल्थ, गवर्न इलनेस, टू मेनी फैक्टर्स। अब इसमें से कुछ फैक्टर अपने हाथ में होते हैं, कुछ अपने हाथ में नहीं होते हैं। मेरी लाइफस्टाइल, मेरी सोच, मैं एडिक्शन में कितना जा रहा हूँ कितना नहीं, मैं नींद कैसी ले रहा हूँ कितनी नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, मैं किस टाइप की न्यूज पढ़ना या सुनना प्रेफर कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, दीज आर द काइंड ऑफ फैक्टर्स व्हिच आर अंडर माय कंट्रोल। कुछ फैक्टर्स के नया वायरस आया वो कितना इन्फेक्टिव है, मेरे पड़ोसी को कोविड था, उसको पता ही था, वो मेरे घर पहुंच गया, उससे मुझे इन्फेक्शन लग गया। अब ये ऐसी कुछ बातें हैं जो अपने हाथ में नहीं है। वैक्सीन मैंने ले तो लिया लेकिन मुझ में काम करेगा कि नहीं, ये मेरे हाथ में नहीं है। सो जो फैक्टर्स अपने हाथ में है वो करते चले जाएं, जो अपने हाथ में नहीं है उसके बारे में कोशिश करें, उनके बारे में नहीं सोचना है कि मेरे हाथ में जितना है उतना मैं कर लूं, तो I can't do anything more than that. See, we have all got limitations. Science has limitations. World Health Organization has limitations. Me myself as an individual as to what I do and how I think, इसको भी limitations हैं. तो जितना अपने हाथ में उतना करते जाएं and try to maintain a positive outlook. मैं अक्सर कहता हूँ कि there is something that I like to tell my patients कि 10-year rule. 10-year rule का मतलब ये होता है कि आज की जो समस्या है वो 10 साल के बाद भी रहने वाली है क्या? तो 99% ऑफ द टाइम्स उसका आंसर होता है कि नहीं रहने वाली, यानी कोविड चारों तरफ फैला हुआ है, बहुत स्ट्रेस है, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हैं, मैं कमा नहीं पा रहा हूँ आजकल, 10 साल के बाद ये रहने वाला है क्या? तो आंसर कॉमनली इसकी नहीं रहने वाला है। सो आई थिंक बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, लुकिंग नॉट ओनली एट द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस बट एट अ डिस्टेंट फ्यूचर व्हेन थिंग्स कुड बी मच डिफरेंट, आई थिंक दीस आर द थिंग्स दैट कैन हेल्प यू टाइड ओवर द क्राइसिस। Sir, आई एम सॉरी बट आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन बिकॉज़ आई एम वेरी कंपेल्ड टू आस्क, you are somebody who is who is a fantastic doctor, very renowned doctor, but you are also very well known for your singing acumen. आप गाते बहुत अच्छा है, मैंने आपको पहले भी आपके इंटरव्यूज में पढ़ा है या आपसे बात भी हुई है, तो सिंगिंग एज अ हॉबी यू टुक इट अप एंड यू आर अ परफॉर्मर, आप जाते हैं परफॉर्म करते हैं, ऑफ कोर्स पहले लॉकडाउन के पहले हमने आपको कई बार देखा भी। बहुत सारे लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल किया है कुछ नई चीजें सीखने में, किसी ने म्यूजिक सीखा है, किसी ने कुछ और सीखा है, किसी ने अपने फिटनेस पे ध्यान दिया है। would you say that picking up a hobby or or something that helps you in your overall being, that can be crucial in playing a very important role in your good overall mental health? Yeah, definitely. I think hobby and recreational pursuits, these are very important. अगर हम आज की तारीख में देखें तो अगर मैं 18 घंटे जाग रहा हूँ 24 घंटे में से, तो 18 घंटे में से आजकल बहुत सारे घंटे कोविड की चिंता करने में, खुद को बचाने में इसमें निकल जाते हैं, तो इट्स कंटिन्यूड स्ट्रेस। अब उसमें अगर मैं आधा घंटा या 1 घंटा निकाल लेता हूँ जब मैं हॉबी में इंडल्ज कर रहा हूँ, अक्सर जब हम लोग हॉबी में इंडल्ज करते हैं तो दिमाग स्ट्रेस में नहीं होता, यू कांट रिलैक्स एंड बी अंडर स्ट्रेस एट द सेम टाइम, तो वो अपने को एक अर्ध विराम या पूर्ण विराम मिल जाता है इन द कंटिन्यूड स्ट्रेस, दैट कैन डेफिनेटली सेव अस। मैं तो कई बार मेरे क्लाइंट्स को बताता हूँ, आप गाने के शौकीन है तो बाथरूम में जब नहाते जोर जोर से गाओ,
अगर आपकी उम्र काफी हो गई है तो शम्मी कपूर ने इस मूड में आके दीवाना हुआ बादल सावन की घटा छाई गाया होगा, इमेजिन और गाओ। अगर आप यंगस्टर हैं तो अरिजीत सिंह कितना उसमें दिल खोल के गाए, सोच के गाओ। सो आई थिंक द मोर यू लिव इन द मोमेंट, the more you try to enjoy the moment rather than lamenting the past or continue to worry about the future, the better it is. So live in the present moment. हॉबी में इंडल्ज करें, डेली कम से कम आधा घंटा 1 घंटा ऐसा कुछ करें जिसमें आपको प्योर आनंद मिल रहा है. सो आई थिंक दैट has a very important role to play in your overall mental health. Alright, thank you so much, Dr. Bhave. I hope कि हम लोगों ने जो अभी बात की आज आपके साथ ये सेशन किया, this can help a lot of people who are going through a lot of stress and mental issues as of now because of this COVID-19 crisis, and I hope that helps them get over it as well. And also, we would like to thank you on Nation Next. We are having this series, I Thank My Doctor. I would like to take this opportunity to thank you because we all know that doctors have played a very important role during the COVID-19 crisis, and I feel psychiatrists have played a very major role because people have had so many problems, and it is doctors like you who have calmed them down, and you have done your work pretty brilliantly. So thank you so much for that as well, sir, on behalf of our viewers. Thank you. Amar, it was my pleasure. Thank you so much. Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.